Hello everyone. Today we are going to start chapter 9 of class 8 and the chapter name is Algebraic Expressions and Identities. Let's start with its introduction. First of all, what are algebraic expressions? Algebraic expressions हैं क्या? Expressions कैसे बनते हैं? Terms को जोड़कर. When we connect terms by plus, positive or negative sign, we can say that these are algebraic expressions. Let's say 2xy plus 3. These are the examples of algebraic expressions. Now, how many terms are there? This is the first term, this is the second term. They are connected by the positive sign. ठीक है? When the terms are connected by positive or negative signs, they form algebraic expressions. Actually, what are algebraic expressions? मतलब expressions तो ठीक है जो terms connect हो गई. Algebraic क्यों बोला है इसमें? क्योंकि यहाँ पर आपके ये जो है x और y, what do we call it? These are called variables. ये आपकी सिंगल टर्म मानी जाएगी 2xy. These are not the different terms. Actually, because these are connected by product sign. 2x and y, how they are connected? 2 into x into y. There is no addition and subtraction sign in it. Therefore, these are can be considered as only one term. जब तक आपका प्लस या माइनस का साइन नहीं आता, आपकी वो इकट्ठी एक ही टर्म होगी. तो ये आपकी अलग अलग तीन टर्म्स नहीं है. दिस इज दी ओनली वन टर्म. Clear? Now we can write as many expressions as much we want. ठीक है? x, y, z minus 5t plus 3. These expression is having three terms. ठीक है? जहां आपका माइनस या प्लस आ गया, it means next term is started. So now you are familiar with what are algebraic expressions. यानी algebraic expressions आपके जो बनेंगे वो कैसे बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो टर्म्स को कनेक्ट करके बनते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ. टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ती हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है. और algebraic इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स भी होते हैं और फिक्स नंबर्स भी होते हैं. जैसे यहाँ पर 2 और 3 आप नंबर्स देख सकते हैं, x और y क्या देख सकते हैं आप? वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का या फिक्स नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उनसे टर्म्स बना के और उनको कनेक्ट करके जो एक्सप्रेशंस बनते हैं, दोज आर नोन एज algebraic expressions. Now you are familiar with terms also. These are the terms: term 1, term 2, term 3. It means this expression has 3 terms. Now come to we have done the algebraic expression and the terms. Now the next topic is what are factors. Factors क्या होता है? जो terms होती हैं हमारी वो connected होती है. टर्म्स जैसे एक सिंगल टर्म जो है उसमें उनके अगर हम जो फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग करें. फैक्टर्स मीन्स कि उनको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये 2xy है. अब ये प्रोडक्ट है 3 टर्म्स का. ये टर्म 1 है हमारी. ठीक है? अगर मेरे को इसके फैक्टर्स लिखने हैं टर्म 1 के, इस एक्सप्रेशन की टर्म 1 के फैक्टर्स लिखने हैं तो आई कैन राइट 2x एंड y. जो आपका जिनका प्रोडक्ट था ना उनको आप अलग अलग कर दीजिए. ठीक है? तो यू विल गेट द फैक्टर्स ऑफ द टर्म. ठीक है? जितनी भी टर्म्स इसमें आ रही है जिस जिसका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 4x minus 3, तो अगर मैं इस टर्म के फैक्टर्स बताऊं तो वो होंगे 4 and x. जिनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म बन रही है, तो अगर हम उनको सेपरेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स. ठीक है? 4x. ऐसे अब 3 के आगे स्प्लिट नहीं कर सकते हम, तो 3 के फैक्टर्स में 3. We have done the terms and the factors of the algebraic expression. Now come to the third topic, which is coefficients. Suppose we are having expression 12xyz plus 3z minus 4. Now if we are talking about the terms, so this expression has 3 terms. This is the one term and then plus sign, it means next term is started. This is the second term and this is the third term. So there are 3 terms and the next topic is we have to tell the factors. If we talk about the factors of term 1, then the factors are 4.
12x, y and z. And similarly, this has two factors 3 and z, and this has 4 and 1 as its. We have talked about the terms and the factors of algebraic expression. Now move on to the next topic, which are coefficients of the algebraic expression. Let's write an expression. Suppose the expression is 12x by z plus 3x plus 5y minus 6. Now this expression has 4 terms. This is the first term. Now plus sign. These two are connected by positive sign. So this is the next term. This is the next term and this is the next term. So there are 4 terms. 1, 2, 3 and 4. So terms clear, and we will take the sign positive or negative along with the terms like this. These all 3 terms are positive. So I have not written any sign with these terms. जो आपकी पॉजिटिव है उनके साथ अगर आप साइन नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टर्म आपकी नेगेटिव है वहां आपको माइनस साइन जरूर मेंशन करना है. तो ये जो मैंने पहले लिखा है ये मैंने टर्म्स लिखी है. अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? फैक्टर्स की बात कर रही हूँ. फैक्टर्स की अगर बात करूँ तो हर टर्म के अलग अलग फैक्टर्स होंगे. अगर आप इस टर्म को देखें तो यहाँ पर 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है ये, सॉरी 4 ये कह लो 4 चीजें दिखा रखी हैं यहाँ जिनका प्रोडक्ट है. तो अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगी, देयर विल बी 4 फैक्टर्स 12x, y एंड z, जिसका ये प्रोडक्ट है. जैसे नॉर्मली आप 8 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 × 2 × 2, उसी तरह से कि 8 किसको मल्टीप्लाई करके आया, ऐसे ही ये टर्म किसको मल्टीप्लाई करके आई है, किसको मल्टीप्लाई करके आई है? 12x, y एंड z. So all these are the factors of this expression. Similarly, this is the 3 and x, these 5 and y, and we can write down -6 and 1. अगर आपको दूसरी कोई टर्म नहीं दिख रही है तो आप लिख सकते हो 1. इवन आप स्किप भी कर सकते हो ओनली -6. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म का प्रोडक्ट है. उसके बाद एक ही टर्म है यहाँ पर. उसके बाद आता है कोफिशिएंट्स, जो मैं आपको बता रही हूँ. कोफिशिएंट्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर का दिया हुआ है, सपोज आपको कहा है कि टर्म 1 में x का कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लायर, कि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो x आपका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 12/z से. ठीक है, तो x का कोफिशिएंट होगा 12/z. इसी तरह से अगर y का कोफिशिएंट पूछा है तो आप बोलोगे 12x एंड z, कि y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12xz. ठीक है, लेकिन अगर आपको जो बात की जाती है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात की जाती है, तो वहां पर आपको सिर्फ लिखा हुआ है कि कोई बताया ही नहीं कि किसका कोफिशिएंट लेना है. आपको सीधा लिख देना, बताया कि x का लेना, ना y का ना z का, सिर्फ बोला है कि कोफिशिएंट्स बताओ. तब आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेंगे. न्यूमेरिकल मींस नंबर बताना है आपने कि वो टर्म कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, यानी आपको वेरिएबल नहीं लिखना है. जैसे फर्स्ट टर्म है आपकी 12x, y, z. तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल जो है, नंबर जो है वो 12 है, तो इसका कोफिशिएंट होगा 12. इसमें अगर नंबर की बात करें तो 3, कोफिशिएंट इज 3. थर्ड टर्म जो है 5y, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5. एंड द फोर्थ टर्म इज -6 व्हिच इज कांस्टेंट 1. इस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. ठीक है, जहां पर आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है. ठीक है, अब सबके साथ आपका वेरिएबल है, हर टर्म के साथ. यहाँ पे आपका x, y, z है, यहाँ x है, यहाँ y है, बट यहाँ कोई x, y, z नहीं है. इसका मतलब यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस टर्म को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. ठीक है, और बाकियों में आप कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे? अगर आया कि कोफिशिएंट बताओ टर्म 1 का, तो आपने सिर्फ न्यूमेरिकल जो उसके साथ नंबर है वो लिख देना है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म. ठीक है, बट अगर आपको पर्टिकुलर बोला होगा कि किसका कोफिशिएंट बताना है x, अब यहाँ पर तो दूसरा कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो वो भी 3 आएगा. अगर कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो वो भी 3 आएगा. बट इस क्वेश्चन में, इस टर्म में, जहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, अगर आपको ये नहीं मेंशन है कि आपको किसका कोफिशिएंट बताना है, x का बताना है, y का बताना है या z का बताना है, तब आप कोफिशिएंट में सिर्फ नंबर लिखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. मोनोमियल है, बायनोमियल है,
ट्राइनोमियल। तो ये आप कैसे चेक करते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर चेक करते हैं। नाम से ही क्लियर है, मोनो मीन्स होता है वन, तो जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें बाय मीन्स टू, जिसमें टू टर्म्स होगी उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, और जिसमें थ्री टर्म्स होगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स होगी। तो अगर मैं आपको इनका एग्जाम में कोई तीन एक्सप्रेशंस लिखूं और उनको क्लासीफाई करूं कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रही हूँ 5xy 15x minus 3 12t minus 5y plus 4, तो अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं आया है, इट मीन्स इट हैज ओनली वन टर्म, और इसलिए हम वन टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सो दिस विल बी मोनोमियल। एंड द नेक्स्ट वन, these are, there are two terms 15x and minus 3, they are connected by this minus sign, so there are two terms, so what we can say that having two terms, so it is a binomial. And this algebraic expression has how many terms, 1 2 3, three terms, and the three terms polynomial expression is known as trinomial. So this is the three algebraic expression with three terms, so it is known as trinomial. This is how you can classify on the basis of the number of terms whether the given algebraic expression is monomial, binomial or trinomial. तो इसका मतलब जब आपने एक्सप्रेशन को बताना है कि इन तीनों में से क्या है ये, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। जितनी टर्म्स होगी उसके बेसिस पर आप उनका नाम दे देंगे। अगर एक ही टर्म है तो आप बोलेंगे ये मोनोमियल है, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल है, और अगर तीन टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल है। लास्ट टॉपिक ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, एंड दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, because it is very important to solve the questions, solve the expressions, unlike and unlike expressions, ठीक है, या terms होते हैं। जब भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और कुछ आइडेंटिटीज भी सीखेंगे, और फर्दर एक और भी चीज़ सीखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि टर्म्स लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। टर्म्स तो आपको पता है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अगर ये टॉपिक क्लियर है तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सपोज आई एम राइटिंग 5xy 3y 10y x 4 minus 9xy. These are the, I have not written any expression, I have written the terms only. मतलब मैंने मोनोमियल्स लिखे हैं सभी, मैंने कॉमास लगाए हैं, मैंने इन टर्म्स को कनेक्ट नहीं किया है। व्हाट डज इट मीन कि इट डज नॉट फॉर्म एन कंप्लीट एक्सप्रेशन, मतलब मैंने इन सब टर्म्स को जोड़कर एक्सप्रेशन नहीं बनाया, मैंने अलग अलग ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं। और मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये सभी मैंने मोनोमियल्स लिखे हैं, वन वन टर्म के एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कैसे पता चलेगा इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं, अनलाइक कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स में हमारे वेरिएबल्स जो है वो सेम होने चाहिए अलॉन्ग विद द पावर, ठीक है। वेरिएबल्स जो है वो सेम रहने चाहिए। आगे का जो नंबर है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, दैट में बी डिफरेंट, वो अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल सेम रहने चाहिए, ठीक है। ना एक्स्ट्रा ना कम होने चाहिए, एकदम एक जैसे वेरिएबल्स होने चाहिए, पावर भी एक जैसे। ना यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अगर हम ले रहे हैं तो इसमें वेरिएबल है x y, और यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल है y। तो आपको मैंने बोला कि कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं है, कि कोई डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता कि आगे के नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, आपके वेरिएबल सेम रहने चाहिए। जैसे इसमें आपको वेरिएबल दिख रहा है x y फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है y, तो दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर x नहीं है, सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। और अगर इसके साथ ही मैं बात करूँ 10x की, तो अगर 5xy में वेरिएबल है xy और 10x में वेरिएबल है x, अब यहाँ y मिसिंग है, इट मीन्स दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। अब अगर इसके साथ मैं 4 लेती हूँ, नेक्स्ट
नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेती हूँ 4, इन दोनों को कंपेयर करती हूँ। तो फिर से अगर मैं देखूँ 5xy और 4 को देखूँ अगर, तो यहाँ पर वेरिएबल है xy और यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब दीज आर ऑल्सो अनलाइक टर्म्स। लाइक कब होगी, लाइक मतलब एक जैसी कब होगी, जब आपका वेरिएबल सेम होगा अलॉन्ग विद द पावर। अब इसके साथ लास्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें 5xy और लास्ट एक्सप्रेशन है -9xy, तो हमें आगे के नंबर नहीं देखने हैं कि यहाँ 5 है यहाँ -9 है, ठीक है। आई सेड इट डजंट मैटर कि जब आप लाइक टर्म्स देख रहे हैं तो आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ वेरिएबल देखा तो यहाँ वेरिएबल है xy और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है xy, तो सेम वेरिएबल, सो दीज आर दी लाइक टर्म्स, या आपकी लाइक टर्म्स होंगे। अब एक चीज और, अगर मैं 5xy और ये 9xy ना होकर 9x² होगा, तो ये भी क्या होती अनलाइक टर्म्स, क्योंकि यहाँ तो x की पावर 9 है और यहाँ x की पावर कितनी हो गई 2, वेरिएबल वही है, यहाँ पे भी xy है यहाँ पे भी xy है, लेकिन यहाँ पर x की पावर हो गई 2, तो फिर हम ये बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्या फर्क है। लाइक टर्म्स में एग्जैक्टली सेम वेरिएबल होना चाहिए, पावर भी ना कम और ना ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। और अगर आपकी पावर भी डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स होगी। बाकी सारी जो जिनमें वेरिएबल सेम नहीं है उनको आप कहेंगे अनलाइक टर्म्स। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ आप करते हैं जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, वहाँ पर जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तो लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं। उसका लॉजिक क्या है कि जैसे आप एडिशन स्टार्ट करते हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में, जैसे आप नर्सरी केजी से एडिशन ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको याद होगा आप ऐसे प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो HEO, ठीक है, 1 2 3 में अगर आपको 53 ऐड करना है तो आप ऐसे नहीं लिखते हैं 53 को, आप उसको ऐसे लिखते हैं। क्यों ऐसे लिखते हैं, क्योंकि 5 जो है वो 10th प्लेस पर है, तो ये 10th डिजिट के नीचे ही आना चाहिए। 3 1st प्लेस है तो उसी के नीचे आना चाहिए। उसी तरह से जैसे आप नर्सरी केजी क्लास से जो भी आप एडिशन सीखते आ रहे हैं, उससे यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर भी आप जब एडिशन करते हैं तो प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जो 10th प्लेस पे है उसको इधर ही लिखते हैं। आप 53 को ऐड करना है तो आप ऐसे लिखते हैं, ना कि आप इसको इस तरह से लिखते हैं 123 53, ऐसे नहीं लिखते हैं। रीजन क्या है, जो 5 है 10th प्लेस पर है तो आप 10th प्लेस के अंदर ही लिखते हैं। इसका मतलब आप लाइक जो प्लेस इनकी एक जैसी है उनको इकट्ठा लिख के फिर ऐड करते हैं। सिमिलरली जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे जिनके वेरिएबल सेम होंगे, तो आगे के नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, वेरिएबल सेम रहेगा। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।